हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Understanding Indian history. There is a most important topic arrive here. Non-literacy source. Non-literacy source here. The first here inscription. Inscription is the most important source here. The inscription are the permanent written engraved on the hard surface such as stone, metal, or is a terracotta. There is the most important here, the permanent written here. There are stone, metals, and terracotta. The study of inscription is called epigraphy. The study of the inscription is called to the epigraphy. Their earliest inscription is were written on a stone, and they usually record to the achievement, activities, and idea of those who got them to inscribe. And so we get inscriptions, and which is a glorif their exploit of a kings or a mention or donations made by the man woman for a religious purpose. These inscriptions which are there composed by poets in the period of kings and peloton, and now as a parasastrics. Parasastrics is a some is inscription carry of date, other are the dated on the basis of the paleographic styles of written. With a fair amount of the precautions and the precisions, and the earliest inscription were a Prakritic, a name for a language user ordinary people. In the later time, Tamil and Sanskriti were also used to be written to the inscription. The Maurya king Ashok was the first person to issue the inscription. There is the most important. Note the point. The Mauryan king Ashok was the first person to issue the inscription. There is start of the Ashok for the written inscription here, and most of the inscription are is a Prakritic language. There is a Prakritic language is the most important this time, and written in the Brahmi script through there some in the northwest. Were written to the Karaksi is the Aramaic and Greek script were used for the inscription in the Afghanistan, so that their local people could be understand their subject matter. That is the most important. The Brahmi script was the first is a deferred in the 1837 by James Prinsep, who was a civil servant during to the British rule. The Brahmi was the and the written from the left to right like a Hindi will a Kharosthi from right to left. Ashokan, his inscription helped to the greatly his understanding his religious and administrative policy. For the 1st century BC, the king started to the grantings land to religious people. The Satyavadhan king of the decline were to the first one to be do so. And this inscription recorded the consequence and the granted to be done is a receive a grant. Is a done there is a receive of grant. Such a inscription help in us in the finding out of religious and economical activity of period. Some of these inscriptions are written on stone, but most on copper plate. The copper plate used on this time. The copper plate is a character where is probably give as a record of the transgression to those who is received the land and were a granted consequence. That is the most important here. However, there is some limitation of the inscriptional and evidence. For example, some time later are very faintly is engraved, and thus the reconstruction are uncontaining. Also, inscription may be damaged or later missing. Besides, it is not always too easy to be sure about the exact meaning of the word used in the inscription, and some of which may be specific to a particular place or time. यदि हम बात करें गैर साहित्यिक सूत्र में, तो ये भी जो है कई मायने में इतिहास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। यानी गैर साहित्यिक सूत्र देखा जाए तो सबसे पहले हमारे समक्ष होता है अभिलेख। कहते हैं अभिलेख जो थी बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये पत्थर, धातु, पकी हुई मिट्टी आदि जैसे शख्स तौर पर जो है खरोच कर उकेरी हुई लिखावट
को जो है अभिलेख कहते हैं। यानी उस समय अभिलेख जो होती थी पत्थर, धातु और पकी हुई मिट्टी आदि जैसे सख्त चीज़ों पर खुरच के लिखी जाती थी। इनका अध्ययन जो है पूरा लेखन विद्या के अंतर्गत होता था। ऐसे बिल्कुल ही आरंभिक लेख शिल्पों तथा पत्थरों पर खुदे हुए भी मिलते हैं। आमतौर पर इन्हें जो है खुदवाने वाली की जो है उपलब्धियां, क्रियाकलाप और विचारों का विवरण भी मिलता है। यानी जिन्होंने खुदवाया है उनमें क्या उनकी उपलब्धियां थी, क्या क्रियाकलाप था, क्या विचारधारा था, तो इन बातों को जो है इस पर अभी आकर्षित की गई थी। इसलिए हमें जो है ऐसे शिलालेखें मिलते हैं जिनमें राजाओं की जो है यशोगाथा होती थी, यानी राजाओं के बारे में विस्तृत जो है इंफॉर्मेशन होती थी। ये लोगों द्वारा धार्मिक उद्देश्यों से किए गए दान पुण्य का उल्लेख भी मिलता है। कवियों ने राजाओं तथा आश्रयदाताओं का प्रशंसा में ऐसे जिन अभिलेखों की रचना की थी उन्हें जो है प्रशंसित कहते थे। कुछ उत्कृष्ट लेखों में तारीखों दी हुई है और अन्य के समय का अनुमान पुरालिपिक शास्त्र या लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सटीकता से लगाया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल ही आरंभिक शिलालेख जो है प्राकृतिक में मिलते हैं जो आम लोगों की भाषा थी। आगे चलकर इनमें तमिल और जो है संस्कृति का प्रयोग भी देखने को मिल रहा है। शिलालेख जो है लिखवाने वालों में सबसे पहला नाम जो है मौर्य सम्राट अशोक को जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है कि सबसे पहला जो है शिलालेख पे लिखवाने का श्रेय किसको प्राप्त है, तो सम्राट अशोक को प्राप्त है। उनके अधिकतर शिलालेख जो है ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई प्राकृतिक भाषा में ही है। हालांकि उत्तर पश्चिम में मिले कुछ शिलालेखों की जो लिपि है खरोष्टी लिपि भी मानी गई है। अफगानिस्तान में मिला शिलालेख जो है अरामाइक और जो है ग्रीक लिपि है ताकि स्थानीय लोगों ने लिखी हुई बातें समझ सके। ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले जो है जेम्स प्रिंसेप को जो 1837 जो है सफलता मिली थी। कहते हैं प्रिंसेप जो है ब्रिटिश शासन में सिविल सर्वेंट थे और ब्राह्मणी हिंदी जो है देवनागरी की ही भांति बाएं से दाएं लिखी जाती थी जबकि खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के शिलालेखों से हमें उनके धर्म तथा प्रशासन संबंधी नीतियों को समझने में बहुत ही सहायता मिलती है। कहते ईसा पूर्व पहली सदी से राजा जो धर्मार्थ भूमि के दान करने लगे थे। सबसे पहले दक्कन के वाहन राजाओं ने ऐसा दान शुरू किया था। कहते उत्कर्णीय लेखों में ऐसे दाताओं और दान प्राप्त करने वाले का विवरण खुदा मिलता था। ऐसे लेखों से हमें उस युग की धार्मिक तथा जो है आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इनमें से कुछ लेख पत्थरों पर पाए गए हैं पर अधिकतर लेख जो है तांबे के पत्थरों पर मिलते हैं। तांबों के पत्थरों पर जो है खुदे अभिलेख जो है शायद भूमि पाने वालों के हितों में भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में तैयार किया जाता था। कहते हैं आज के समय में बहुत से हमारे पास जो है सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उस समय जो होता था कोई अगर भूमि बेचा जाता था तो तांबे के पत्र पे जो थी खुदवाई जाती थी और उसका जो है सिग्नेचर वहाँ पर लिया जाता था। तो कहते थे ये जो प्रमाण होती थी बहुत ही साक्ष्य रूप में उपलब्ध होती थी। मगर इस प्रकार के लेखों का प्रमाण के तौर पर पूरी तरह से स्वीकारने में कुछ बाधाओं भी थी। अब क्या बाधाएं थे? उदाहरण के लिए कई अक्षर जो थे काफ़ी हल्के खुदे होते थे, इसलिए उन्हें पूरी तरह से पढ़ना समझना संभव नहीं होता था। इसके अलावा कहीं कहीं लिखावट घिस गई थी और कुछ अक्षर गायब भी हो गए थे। यह भी हो सकता है कि कुछ शब्दों के अर्थ हमारे जो है सामने स्पष्ट न हो सके क्योंकि वे किसी विशेष स्थान या समय से जुड़े हों। तो कहते हैं ये सारी जो बातें थी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट था शिलालेख के अंतर्गत, जो कि इतिहास को समझने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। The second point here are no literacy there as coin. There is the most important here. The coin is the most important for the ancient period is the recognized. There is the study of the coins is known as the is a numismatics and it does not only include the visual element such as the script and the image on the coin, but also is a metaphysically analysis. Ancient coins were mostly is minted in the metals such as copper, silver, gold, and the lead. The earliest coin found in the India contained a symbol and where is called punch mark coin. They were is the made of the silver and copper. And the 6th century BC onward, the first coin to bear the name and the image of ruler were to the issue by the Indo-Greeks.
and who established control over to the northwestern part of the subcontinent. And 2nd century BC, their first gold coin were issued by their Kushan. That is the most important here. The for Kushan is the founder of gold coin were issued by the Kushan. And next year, 1st century AD, the sum of the most spectacular gold coin were issued by the Gupta rulers. That is also important. There are some of most spectacular gold coin were issued by the Gupta rulers, and their earliest issue are remarkable for their purity of gold content. There is a most important here. The coin provide the useful information regarding to economical history as they are used as a medium of exchange. Some coin were issued by the guilds or association of the merchant and craftsmen with the permission of the rulers. This show the influence of the craft and the commerce. Coin also emphasizes the king and the goods and content is a religious symbol, all to which they wrote the light on their art and religions of their time. There is the most important here. A coin provides useful information regarding economic history as they were used as a medium of exchange. यदि यहाँ पर हम बात करें सिक्के को, जिससे हम जो है पुरातन समय की जो विचारधारा थी, पुराने समय की जो खोज थी, वो सिक्का जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा करता है। तो सिक्के का अपना एक महत्व रहता है प्राचीन जो है इतिहास को जानने में। ठीक है, तो कहते हैं सिक्कों का अध्ययन जो है मुद्रा शास्त्र कहलाता है। आपको पता ही है सिक्कों का अध्ययन जो करते हैं मुद्रा शास्त्र कहलाता है। और इसके अंदर सिक्कों पर जो है उकेरी हुई लिपि और जो है आकृतियाँ जैसे दृश्य तत्व ही नई धातुओं जो है विशेष जैसे तत्व भी आ जाते हैं। प्राचीन सिक्के अधिकतम तांबा, चांदी, सोना और सीसा जैसी धातुओं से ढाले जाते थे। भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले सिक्कों में कुछ प्रतीक बने होते थे और इन्हें आहत यानी पंच मार्क सिक्के कहा जाता था। ये जो है ईसी पूर्व छठी शताब्दी के बाद से आरंभ हुआ। चांदी और तांबे के ढाले होते थे और पहल जो है जिन सिक्कों में शासकों के नाम आकृतियाँ दिखाई देती थी उन्हें भारतीय यूनानियों ने जारी किया था, जिनका जो है ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी के लगभग इस जो है उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिमी भाग पर नियंत्रित स्थापित हो चुका था। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा इसी की पहली सदी के लगभग जो कुषाणों ने जारी की थी और कुछ बहुत ही दार्शनिक जो है स्वयं मुद्राएं जो है गुप्त वंश के शासकों ने जारी की थी। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है यूपीएससी एग्जाम के लिए कि जो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो थी ईसा की पहली सदी के लगभग कुषाण ने जारी किया था, यानी कुषाण वंशों ने ये जो है सोने के सिक्के जारी किया था। लेकिन कुछ बहुत दर्शनीय स्वर्ण मुद्राएं जो है गुप्त वंश के शासकों ने जारी किया था, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात आती है। इनमें प्रारंभिक मुद्राएं इनके सोने की शुद्धता के लिए जानी जाती थी, यानी उस समय जो था सोने की जो शुद्धता थी वो बहुत काफ़ी उत्तम थी। सिक्के क्योंकि विनिमय लेन देन के माध्यम के रूप में काम में लिए जाते थे, इसलिए उनके आर्थिक इतिहास के बारे में उपयोगी जानकारी भी मिलती है। कुछ सिक्कों शासकों की अनुमति से जो है व्यापारियों और दस्तकारों को जो है संघों द्वारा भी जारी किए जाते थे और इससे जो है दस्तकारी और वर्जनीय के प्रभाव का पता चलता है। सिक्कों पर जो है राजाओं और देवताओं की जो है आकृतियाँ भी दिखाई देती है और धार्मिक प्रतीक भी। इन सबसे जो है उस समय की कला और धर्म का जो है प्रकाश पड़ता है कि उस समय धर्म और कला किस प्रकार से थी। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है सिक्कों के अध्ययन से। तो सिक्कों के अध्ययन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें उस समय के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। कहते हैं पुराने समय में जो राजा हुआ करते थे वो अपना जो है विशेष गुणों का जो है वो सिक्कों पर ही बखान करते थे। कई जगह जो है समुद्रगुप्त को जो है बिना बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये सब सारी बातें जो होती है सिक्कों पर ही दर्शाया जाता है। इससे पता चलता है कि उनकी क्या महत्व थी। कई जगह पर आपने देखा भी होगा और इस बात को जो है एहसास भी किया होगा कि सिक्के जो हैं पुराने तत्वों को अध्ययन करने के लिए बहुत ही उत्तम सामग्री के रूप में देखा जा सकता है। The next topic is here archaeology. There is the most important here. The materials remain of the past can be studied with the help of the archaeology, as archaeology is the science that is enabled used to the systematically is a dig the successive layer of the old mounds and to form on the idea of the material life of the people of the past on the basis of the remaining founder there.
Archaeology is a very important to study of the history, and there is a period before the invention of written. The history is basically is based on the written material. Through the written was the known as the Indian by 2500 BC in the India's culture. Its script has not so far been to the disparate. Through there is the Harappans and now how to written, but is the historians have not been to the able to read it. Their culture is a place in the period called to the periodic historic phase. The first script of the is deciphered was the Brahmi, which was used in the Asokan inscription, and it is belong to the 3rd century BC. There is a most important here archaeologists here, and there is Harappan cultures is the most important. There is the read. The excavations has both to be like the tools of earlier human in a Indian going as back as a 7 lakh year. They excavated is a site belonging to the Harappans period show the layout of their settlement and the form of the houses in which the people lived. The types of poetry is the tools and the implement they use and the kind of the care there is a consumed. In South India, some peoples were buried along with their tools, weapon, poetry, and other belonging under big and heavy stones. And this is a graves is known as the Malathas, and by the diggings, them we learn about their life of people who live in the Deccans and the South India before the 3rd century BC. The date of remain found in the excavations are fixed by the various methods. The most important of them is the radiocarbon or carbon 14 a dating method. There is a most important here. There is a dating of method or carbon dating method. Radiocarbon is a 14 is informed to the edge of the same time, and the carbon 14 is a radioactive carbon present in all living objects. Is a decline like all the radioactive substance as a uniform is a rate when to object is a dead. By measuring the loss of C14 content in the ascent object is a boards bone and its age can be determined. There is a most important here carbon 14 yeah radiocarbon or carbon 14. There is a most important from to the wood and bone is age can be determined. The history of climate and the vegetation is known through their examination of the plant residues and especially through the pollen analysis. On this basis is the suggested that agriculture was a pesticide is a Kashmir and Rajasthan around 700 to 600 BC. The nature and the component of the metal artifact can also be analyzed to scientifically, and consequently is the mine from which is the metal were obtained are located and stage in the development of metal technology identified. The geologically here a study provide an idea of the history of soil, rock, etc. Where is a perihistoric is man live, and human histories cannot be understood without an idea of the continuous interaction between the soil and plants and animals on one hand and the humans on the other. Taken together with the archaeologically is remind is geologically and biologically study act as an important source for the reconstructions and development of human history. यहाँ पर देखा जाए तो हमारे समक्ष जो आया है पुरातत्व। तो ये पुरातत्व क्या है? पुरातत्व जो होती है पुराने समय से मिले हुए कुछ अवशेष। कहते हैं अतीत के भौतिक अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व की सहायता से होती है, जो हमें पुराने टीलों की तहों की एक के बाद एक जो व्यवस्थित रूप से खुदाई करना और इसके द्वारा मिले जो है अवशेष के आधार पर बीते युग के मनुष्य की भौतिक जीवन के बारे में अनुमान लगाना सिखाता है। इसलिए पूर्व काल अथवा लेखन का आविष्कार होने के पहले के युग के अध्ययन के लिए जो है पुरातत्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास जो है मूलतः लिखित सामग्री पर आधारित होती है। हालांकि भारत में जो है 2500 ईस्वी पूर्व में भी सिंधु घाटी संस्कृति के कला में लेखन का प्रचलन
हो चुका था, पर उस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इस प्रकार जो है, हालांकि हड़प्पा वासी लिखना जानते थे, पर इतिहासकार उस लेखन को पढ़ नहीं सके। तो जो कि पुरातत्विक के अंतर्गत आता है। कहते हैं समय भी जो लोग थे समझदार थे, लिखना पढ़ना जानते थे और समझते थे कि इसका क्या महत्व है। लेकिन देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के कल्चर को जो है लिखी हुई स्क्रिप्ट जो है आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, जो कि बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यहाँ रखती है। कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के कल्चर उनकी संस्कृति का आरंभिक इतिहास दौर में रखा गया था, जिसको सबसे पहली लिपि को पढ़ा जा चुका है वह है ब्राह्मणी, जो कि ईसा पूर्व तीसरी जो है सदी के लिपि है और अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भी हुई है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ आता है। कहते हैं खुदाई के द्वारा भारत में 7 लाख वर्ष पहले रहने वाले मानवों के द्वारा प्रयुक्त औजार तक हमें मिले हैं। और हड़प्पा के जो है स्थानों खुदाई से वहाँ की जो है बस्तियाँ, योजनाएं, लोगों का निवास स्थान स्वरूप का भी पता चला है। साथ ही यह भी पता चला है कि वे मिट्टी के किस प्रकार के बर्तन जैसे औजार और उपकरणों और किस प्रकार के खाद्यान्नों का इस्तेमाल करते थे। दक्षिण भारत में कुछ व्यक्तियों को उनके मिट्टी के बर्तनों, औजारों, हथियारों और अन्य निजी वस्तुओं के साथ साथ बड़े बड़े भारी पत्थरों के नीचे दफनाया जाता था। इस कब्रों को जो है महापाषाण जो है मेगालिथ कहा जाता था। और इसकी खुदाई से हमें 3वीं सदी ईस्वी पूर्व के पहले दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात भी आता है कि उस समय के जो है बड़े बड़े हमें दफनाए गए चीज़ों के बारे में जो है इन्हीं चीज़ों से पता लगता था। कहते हैं खुदाई में मिले अवशेषों की जो है प्राचीनता या उम्र का निर्धारण कई पद्धतियों से होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि रेडियो कार्बन या कार्बन 14 यानी C14 कला निर्धारित पद्धति थी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कार्बन 14 क्या होता है। देखिए कार्बन 14 जो होता है उस समय के जो हमें अवशेष मिले थे उसको जो है कार्बन 14 से जो है हम उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कितना साल पुराना हो सकता है। और ये मेथड जो है रेडियो कार्बन या कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक जो है विवेकनशील कार्बन है जो सभी प्रकार के जीवनधारियों में होता ही है। जीवधारियों की जो है मृत्यु के बाद सभी जो विवेकशील पदार्थ की तरह ही ये भी एक निश्चित सामान्य गति से जो है नष्ट होता रहता है। किसी भी प्राचीन पदार्थ लकड़ी हो या हड्डी को जो है उम्र का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके C14 तत्व किस सीमा तक हर्ष हुआ है। यानी इससे हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस जो है पदार्थ का जो है उम्र कितनी है, चाहे लकड़ी हो चाहे हड्डी हो, क्योंकि उसमें जो है कार्बन का जो है लुप्त होना, हर्ष होना वो दर्शाता है कि वो कितना पुराना है। मौसम और वनस्पतियों के इतिहास का पता जो है पौधों के अवशिष्ट अंशों और मुख्य पराग के विश्लेषण से लगता है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि कश्मीर और राजस्थान में जो है 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के लगभग भी खेती होती थी। धातु की बनी वस्तुओं के प्राकृतिक या उसके अवयवों का भी वैज्ञानिक विश्लेषण हो सकता है और इसमें जो है उन खदानों का भी पता चल सकता है जिनसे ये धातु निकाली गई थी। इस प्रकार धातु के प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी के विकास के चरणों को भी हमें पहचाना जा सकता है। कहते हैं भूवैज्ञानिक अध्ययन से जो है ऐतिहासिक मानव के निवास स्थल की मिट्टी और चट्टानों आदि के इतिहास का अनुमान भी हो जाता है। जब तक एक और मनुष्य और दूसरी ओर मिट्टी, पौधे और पशुओं के निरंतर जो है पारंपरिक संपर्क को न समझा जाए तब तक जो है मानव इतिहास को भी नहीं समझा जा सकता है। पुरातात्विक अवशेषों के साथ ही भूवैज्ञानिक और जो है प्राणी शास्त्र के अध्ययन का योग्य मानव इतिहास की पुण्य संरचना और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में देखा जा सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात रहता है कि प्रागैतिहासिक मानव की निवास स्थल की मिट्टी, चट्टान आदि के इतिहास का अनुमान भी हमें लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भूवैज्ञानिक और प्राणी शास्त्र का अध्ययन का योग जो है मानव इतिहास का पुण्य रचना और विकास के महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में भी यहाँ देखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक हियर अकाउंट ऑफ द फोरगन ट्रैवलर्स। देयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर देयर accounts of the foregons are travels. Their indigenous is literatures can be supplemented by the foregone accounts. To India come Greek, Roman and Chinese is a visitor either as the ambassador as the traveler or to seek religious and knowledge
from time to time. They have left behind on account of the things they say to be a quote of the Chandragupta Maurya is come to Greek is a ambassador is called is a Megasthenes and who is wrote a Indica. The Megasthenes is who is written to the Indica. Its original text is a lost, but part of it has been to the preserved to the fragment acquired by the quaint Greek writer. When they read together, this is a fragment of furnish is available information not only about the administration but also social class and economical activity of Maurya period. There is a most important here. Indica, the magazines, there who is wrote Indica, there is the times of Chandragupta Maurya and Greek ambassador. There is the most important here. Greek and the Roman account of first and second centuries is a mention many Indian port and commodities of trade between India and the Roman Empire. The very plus is there are Athens, she and the Potamines of the zero fix and both written in the Greek and provide to valuable data in this regard. Of the Chinese travel, mention may be made of the Fashioned and the instance. Both of them is a Buddhist and come to and this is a country mainly to visit the Buddhist sharings and the study of Buddhism. Ephesians, who has come to India in the 5th century AD, described the condition in India in the age of Guptas, where Hushan's tank present of similarly account of India in the 17th century during the time of King Harshvardhana. The Harshvardhana Husan Tang is also described in a detail. The gallery of Nalanda universities is Bihar during this time. There is a most important year of Nalanda University is Bihar on this time. यहाँ पर दोस्तों जो हमारे समक्ष आया है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। देखिए बहुत से विदेशी यात्री आए जो हर जगह घूम घूम के आए और उन्होंने हर तरह के वृत्तांत को जो है अपने लिखा और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट तत्व के रूप में भी देखा जा सकता है। स्थानीय साहित्य से प्राप्त जानकारी को विदेशियों द्वारा दिए गए वेरों से और बढ़ाया जा सकता है। भारत में समय समय पर जो है ग्रीस, रोम और चीन ने जो है अंगातिक आते ही रहे हैं। भारत में देखा जाए तो हर एक समय में कोई ना कोई जो है इतिहासकार जो है भारत में यात्रा किए हैं और उन्होंने जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान भारत के इतिहास के लिखने में योगदान दिया है। कोई राजदूत बनकर, कोई यात्री के रूप में, तो कोई धर्म के अध्ययन के लिए यहाँ पर आए हैं और उन्होंने बहुत सी बातें को जो है अपने जो है लेखों में सम्मिलित किया है। उन्होंने जो कुछ देखा वो उसका वृत्तांत छोड़ गए और उन्होंने अपनी किताबों में लिख गए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज जो नामक ग्रीक राजदूत आया था जिसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था जो कि ग्रीक राजदूत था और इसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा और इसका मूल्य पाठ आज नहीं मिलता है, लेकिन इसके कुछ अंश पर्वतीय ग्रीक लेखकों की रचनाओं में जो है उद्धरणों के रूप में सुरक्षित रह गए हैं। इन्हें एकत्र करके पढ़ा जाए तो हमें मौर्य काल की प्रशासन व्यवस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक वर्ग को और तथा सामाजिक गतिविधियों का भी मूल्य जानकारी हमें मिलेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है। पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के ग्रीक और रोमन व वृत्तांतों में कई भारतीय जो है बंदरगाहों का और उन वस्तुओं का उल्लेख हुआ है जिनका व्यापार भारत और रोमन साम्राज्य के बीच होता था। इस संदर्भ में ग्रीक में लिखे ग्रंथ एरथ्रियन सी और जो है टायलेमी जो है ग्राफी बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध कराता है। यानी ये जो दो बुक्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको एरथ्रियन सी और जो है एटोमल की जो है जायोग्राफी बहुत ही बहुमूल्य माना गया है उस समय के लिए। कहते हैं चीनी यात्रियों में जो है अफियान और जो हेवन सांग का नाम लिया जा सकता है। दोनों ही बौद्ध थे और इस देश में बौद्ध तीर्थ के दर्शन तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए थे और ईसा की 5वीं शताब्दी में भारत में आए जो फरहान के जो है गुप्तकालीन भारत की स्थिति का वर्णन भी किया। यानी फरहान ने जो है गुप्तकालीन भारत की स्थिति का वर्णन भी किया, जबकि हर्षत्यांग ने शताब्दी में सदी में जो है राजा हर्षवर्धन ने कला का वैसा ही ब्यौरा दिया। यानी सर्वे स्वैगान ने उस समय का जो नालंदा विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट का भी बड़े विस्तार का वर्णन किया था। यानी देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय
जो कि बिहार में, उसका भी उन्होंने बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया था। किसने? हरवेश संघ ने, यानी हवेनस सर्ग ने बहुत ही खूबसूरती का नालंदा विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया था। The next year, a most important, a changing notions of history. That is the most important here. It was suggested, particularly by Western scholar, that ancient Indians had no sense of the written history. But it is not a true. There is not a true. But actually, Indian as a sense of written history was different from that of the Westerner. The people from their best recorded even is a chronologically and order will their ascent Indian wrote in their different manner. It can be seen in the text is called to the Puranas, and there is a four different ages called Krita, Terita, Devapura and the Kalis are mentioned. There is the most important, and in each age we get a detailed list of the rulers and syntastics. Besides, there is a large number of inscriptions has been to discover. This give a genealogies of king of various dynasties and also refer to their achievements. It shows that India had their basic knowledge of time and the space where event were taking place. There is a most important. The modern research in the ancient India history is began in the 1765 when the East India is the company took control of Bengal and Bihar. In order to administer their Hindus law Manu Samriti, the ancient Indian text on the law was translated into the English in 1776. This initiated of effort of the British to understand the ancient law and the custom, and there is a culminated in the establishment of the Ascetic Society of Bengal in 1784. Under it is the ethics and that of the several other such a society, Hindu religious and classical texts were translated into English. The greatest impetus to the Indological study was given by Max Muller and German-born scholar. Soon the British realized that they are needed and intense is the knowledge of Indian scripture and social system to rule them better. Even the Christians is the missionaries left their need now more about the Indians' law and the custom in order to convert them and the help to the British strength and their rule. Well, the translating their text, Western scholar write about the Indian unwillingness to be their change and they began to the customized to despotic rule. There is a most important here. In 1904, is Vincent R. Smith wrote a real history of India. It was the first systematic history of ancient India. In this book, his approach to the history was a pro-British and he tried to justify the British rule in India. It has served a good is a propaganda is a material for their speculations of despotic British rule. This India scholar carefully studied ancient India texts on the volatile to demonstrate that ancient India had a keen sense of administration. Dr. There's a Bhangekar is 1875 to 1950 and the epigraphist is a published book on the ancient India is a politically institution. H. Caesar Rai Chaudhary is the most important. The Rai Chaudhary is 1892 to 1957 reconstruct their history of ancient India and while doing so criticized V.A. Smith at many points. A stronger element appear in the written of R.C. is a Judar is 1880s and 1980, who is the editor of the multi-volume history and culture of Indian people. Until 1960, Indian scholar inspired by the idea of the nationalism glorified their histories of their respective religions and of the Indian as such. The merit of the expounding their myth of is a despotism and goes to the K.P. Jaiswal
is the 1881 and 1937. He wrote about the extensive of Indian republics and self-government in nascent India. After the independence, a new trend of history took over. There was a shift toward the writing of non-political history with a great emphasis on the society and the economics. The wonder that was India was one such as a pioneering work written by the A.L. Bhushan's 1940 to 1986. A further shift evidence in the D.D. Khoshbi is a 1907 to 1966. The book on the introduction to the study of Indian history. His treatment is a follow as a social economic aspect of ancient India history. After him, to large number of historians following there is a trend and focus on the social, economic, and cultural history. There is a main stress was on the mean of production and the social and economical relationship among different groups of people. यहाँ पर दोस्तों जो आया है हमारे समग्र इतिहास की बदलती अवधारणाएं। देखिए इतिहास की बदलती अवधारणाएं क्या है। कहते हैं एक धारणा विशेषकर जो है पश्चिमी विद्वानों द्वारा फैलाई गई कि प्राचीन काल के भारतीयों में इतिहास लेखन का कोई बोध नहीं था, जो कि बहुत बड़ी जो है गलतफहमी थी कि भारत के लोगों में भी इतिहास लिखने की जो है बहुत बड़ी चाव थी। मगर यह सत्य नहीं है। वास्तव में भारतीयों का इतिहास लेखन बोध जो है पश्चिम लोगों के भिन्न था। यानी भारत में देखा जाए तो उनको लिखने की पद्धति जो थी थोड़ा सा भिन्न था। पश्चिम में घटनाओं को जो है कालक्रम के अनुसार लिखा जाता था, जबकि जो है प्राचीन भारत की जो है पद्धति इससे भिन्न थी। इसका उदाहरण हम पुराणों में देख सकते हैं, जिनमें 4 विभिन्न युग थे, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये 4 जो युग की बात की गई थी, तो हमें कैसे पता चला? यानी हमारे देश में ये सब बातें लिखी गई थी, तभी हमें जो है 4 युगों के बारे में पता चला, सतयुग, त्रेता, द्वापर और जो है हमारा कलयुग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है इतिहास के बदलती अवधारणाओं के अंतर्गत। कहते हैं हर युग की जो है शासकों और राजवंशों की विस्तृत सूची भी हमें मिलती है, और इसके अतिरिक्त जो है कर्णिक लेखों की भी बड़ी संख्या मिली है, जिसमें विभिन्न राजवंशों के राजाओं के जो है वंशावली का और साथ ही उसकी उपलब्धियों का उल्लेख भी हमें मिलता है। इससे पता चलता है कि भारतीयों को घटनाओं के समय, काल और स्थान का जो है बुनियादी बोध हुआ करता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। कहते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक खोज जो 1765 में आरंभ हुई थी, जब बंगाल और बिहार के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। हिंदू विविध व्यवस्था लागू करने के लिए भारतीय वेद के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति जो 1776 में अंग्रेजों ने अनुवाद किया था, यानी मनुस्मृति का जो है 1776 में अंग्रेजों ने इसको जो है अपने लैंग्वेज में जो है इसको अनुवाद किया था, और अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय नियमों और आचारों को जानने समझने के जो आरंभिक प्रयत्न किए थे, उन्हें सन जो है 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के साथ पूर्णता प्राप्त भी हुई तथा ऐसी अन्य कई सोसाइटियों की जो है तत्वावधान में हिंदू धार्मिक तथा शास्त्रीय लेखन का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इसके अध्ययन को सबसे अधिक बल जो है जर्मनी में जन्मे विद्वान मैक्स मुलर के जो है प्रयत्नों से काफ़ी सफलता मिली थी। अंग्रेजों ने भी जल्द ही समझ लिया कि भारतीय पर जो है अच्छी तरह से शासन करने के लिए अनेक धर्म ग्रंथों और समाज व्यवस्थाओं का ज्ञान आवश्यक है। कहते हैं ईसाई मिशनरी ने भी भारतीयों का जो है धर्मांतर करने और ब्रिटिश शासन को जो है सुखद करने के लिए भारतीय कानूनों और रीति रिवाजों को अधिक जानकारी हासिल करने की जरूरत को महसूस किया था। भारतीय लेखक का जो है अनुवाद करते हुए पश्चिम विद्वानों ने जताया कि भारतीय परिवर्तन के प्रति जो है अनिच्छुक होते हैं और अत्याचारी शासन के असभ्यत हो चुके हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आता है। सन 1904 में जो है विल्मिंगटन ए स्मिथ ने जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था ए स्मिथ का। यह प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास था, यानी देखा जाए तो ये पहला व्यवस्थित इतिहास था, जो कि 1904 में जो है विल्मिंगटन ए स्मिथ ने जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, जो पहला व्यवस्थित इतिहास बना। लेखक ने इसमें जो इतिहास के ब्रिटिश के दृष्टिकोणों से देखा और भारत में ब्रिटिश शासन को आवश्यक ठहराने की चेष्टा भी की।
अंग्रेजों का तानाशाही शासन बनाए रखने के लिए इनमें अच्छी प्रचार सामग्री का काम भी किया था। भारतीय विद्वान विशेषकर वे भी पश्चिम शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, यानी जो अगर देखा जाए तो समय भारतीय विद्वान ने भी बहुत सी शिक्षा जो थी पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, और इस बात से वो बड़े परेशान थे कि अंग्रेज लोग भारतीय इतिहास को अपने जरिए से अपने हित के अनुसार तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर उनमें से कुछ ने इतिहास को फिर से लिखने का दायित्व उठाया ताकि भारतीय संस्कृति की वास्तविक गौरव को दुनिया के सामने लाया जा सके। और इस प्रकार के दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय इतिहासकार थे आर जी जो भंडारकर, जो 1837 से 1925 तक अपना कार्य करते रहे, और बी के राजवाड़े जो थे 1869 टू 1926 तक उन्होंने अनेक स्रोतों से सामग्री एकत्र करके सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को पुण्य रचना किया। यानी इन दोनों का जो है भारतीय इतिहास को बचाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने बाल विवाह और जाति प्रथा जैसी कुछ सामाजिक बुराई पर भी प्रहार किया, और जो है विधवा के पुण्य विवाह को जो है हिमायत भी की। कहते पीवी कणे ने जो 80 तक जो 1972 का जो योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र शीर्षक का एक विराट ग्रंथ की रचना की जिसमें प्राचीन भारतीय समाज के प्रमुख तत्व जो है पर प्रकाश डाला गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आता है। इन भारतीय विद्वानों ने राजनीतिक संबंधी प्राचीन भारतीय ग्रंथ का गहराई से अध्ययन किया ताकि प्राचीन भारतीयों को प्रशासन संबंधी वृद्धि को जो है प्रमाणित किया जा सके। डी आर भंडारकर जो 1875 टू 1950 तक अपना लेखन कार्य किए पूर्व लेखन विद्वानों के विद्वान में से एक माने जाते हैं। वो प्राचीन भारतीय सामाजिक संस्थाओं पर लिखे हुए ग्रंथ प्रकाशित किया करते थे। एच सी राज चौधरी ने 1892 से लेकर 1957 ने भारतीय प्राचीन के इतिहास का पुण्य लेखन आरंभ किया, और इस क्रम में कई जो है बिंदुओं पर बी एम स्मिथ की आलोचना भी इन्होंने खास तौर पे किया, क्योंकि उन्होंने जो है भारतीय संस्कृति को तोड़ मरोड़ के पेश किया था बी एस स्मिथ ने, इसलिए जो है इनका आलोचना भी की गई। आर सी मजूमदार ने जो है 1888 से 1980 तक के लेखन में यह बात और भी मजबूत से उभारती है। उन्होंने कई खंडों में जो है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया जो है पीपुल्स का संपादन भी किया, और 1960 तक जो है राष्ट्रता की भावना से प्रेरित भारतीय विद्वान अपने अपने क्षेत्रों को और भारत के इतिहास को गौरव को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते रहे। अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय शासकों को जो है अत्याचारी और निर्कुश होने के जो मिथ्यक गाथा था उसे तोड़ने का श्रेय जो है केपी जायसवाल जो कि 1881 से लेकर 1937 को जाता है। यानी इसके दौरान उन्होंने जो है केपी जायसवाल ने बहुत बातों को जो है खंडित किया। उन्होंने प्राचीन भारत में गणतंत्र और स्वशासन को अस्तित्व के बारे में भी लिखा। स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन में कई नई प्रवृत्तियां छाने लगी। अब राजनीति इतिहास में जो है हटकर समाज और अर्थव्यवस्था के इतिहास पर अधिक बल दिया जाने लगा, और इस प्रकार की पहली रचनाओं में से एक थी A.L. वर्षम जो कि 1914 टू 1986 लिखित द 100 डे ऑफ इंडिया, और डी कोसाविक जो 1907 से लेकर 1966 के ग्रंथ ए इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री में यह परिवर्तन और भी स्पष्ट हुआ। उनका लेखन प्राचीन भारतीय इतिहास के जो है सामाजिक आर्थिक पक्ष को लेकर चलाया था। उसके पश्चात बहुत सारे इतिहासकारों ने इस प्रवृत्ति का अनुसरण भी किया और अपने लेखन और सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास पर केंद्रित भी किया। उनका प्रमुख जो है बल उत्पादन के साधनों और विभिन्न समूहों को व्यक्तियों के बीच के जो है सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों पर रहा। Our most important topic arrive here, a theme in Indian history. What is the theme of Indian history here? For on the overall knowledge of the past, students are to be made aware of various aspects of the society is called themes. And these themes enable us to learn about the development in a different sphere: social, economical, religious, political, and cultural. The development in this is a sphere are so much is interlinked that they are often to break the boundaries between them. For example, when the pastoral society of the earlier Vedic age got transformed into the settled agriculture society in the later Vedic age, the political system changed as the consequence. The king, who was the earlier
now as a Gopati is a lord of cattle. Is the pastoralist societies become a Bhopati is a lord of the land. And with the development of agriculture economics and with that is the war began to the fault of the acquiring more land instead of the cow. The king is a gradually is a become a powerful and the kingship hereditary. So we have noticed that a change in a different. In this course of materials, you will be learn about their development in the field of art, agriculture, caste system, science and economics, technology, and also about their rise and growth of various religious sect and schools. There is the most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है भारतीय इतिहास की विषय वस्तु यानी क्या थीम हो सकते हैं। कहते हैं अतीत के संपूर्ण ज्ञान के लिए जो है विद्यार्थियों को समाज के विभिन्न पक्षों के जो है प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। इन पक्षों को जो है विषय वस्तु कहा जाता है यानी थीम्स कहा जाता है और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीति, संस्कृति आदि विभिन्न क्षेत्रों में जो कुछ भी घटनाएं हुई है उनके बारे में हमें जानकारी भी मिलती है। इस तमाम क्षेत्रों में हुई घटनाएं परस्पर इतनी अधिक संबंधित होती है कि इनके बीच की सीमाएं अक्सर टूट जाती है। उदाहरण के लिए जब आरंभिक वैदिक युग का जो गोपालक समाज उत्तर वैदिक काल में जो है बस्तियों में बसे एक जो है कृषक समाज में बदला तो परिणाम स्वरूप राजनीति पद्धति में भी परिवर्तन आया। गोपालक जो है समाज में राजा गोपति कहलाता था यानी गोपालक समाज में राजा जो होता था क्या कहलाता था, गोपति कहलाता था। और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के साथ वह भूपति कहलाने लगा। साथ ही जो है अब युद्ध दूसरे की गाय छीनने के लिए नहीं बल्कि अधिक भूमि हासिल करने के लिए होने लग गई। यानी पहले देखा जाए तो साथ ही कहते हैं युद्ध दूसरे गायों के छीनने के लिए नहीं होती थी बल्कि भूमि के लिए होने लग गई। राजा क्रमशः अधिक शक्तिशाली होने लग गए और राजा का पद वंश परंपराओं से मिलने लग गया यानी एक के बाद एक जो होगा राज्य वंश पे बैठेगा। तो हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के परिवर्तन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, प्रायः उनका प्रभाव बड़ी बड़ी घटनाओं पर भी पड़ता है। और इस पाठ्य सामग्री में आपको कला, सामर्थ्य, जाति व्यवस्था, जो विज्ञान और अर्थव्यवस्था के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जानने को मिला और बहुत काफ़ी ये इम्पोर्टेंट भी था। कहते हैं इससे हम जो है प्राथमिक और जो आधुनिक में भी काफ़ी हम जानने और समझने की कोशिश भी किया। प्लस हमने जो जितने भी तत्व लिए सारे के सारे बहुत इम्पोर्टेंट थे प्राचीन इतिहास को समझने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।